beta का arithmetic mean है 8/5 and arithmetic mean of 1/alpha and 1/beta is 8/7, then the quadratic equation is one of these: 5x square plus 16x plus 7, 5x square minus 16x plus 7, 7x square plus 16x plus 5 equals to 0, and the option D is none of these. Now, if you have the answer other than these three, then there your answer will be none of these. The arithmetic mean of alpha and beta is 8/5. Alpha and beta, their arithmetic mean is 8/5. Roots have the arithmetic mean, and their reciprocals have the arithmetic mean 8/7. Then which of the following is the quadratic equation is our question. So you can verify your answer by finding the roots of the following equations also. You can find the quadratic equation by finding the roots of the following equations. Finding the roots of the following equations or verifying the arithmetic mean with the arithmetic mean of the following equations. Now forget about the options. Let us use the complete method, complete process. What is our complete process? The complete process is what? The arithmetic mean of alpha and beta is what? Alpha plus beta upon 2, which is given 8/5. And the arithmetic mean of these two numbers is what? 1/alpha plus 1/beta divided by 2, average of 1/alpha and 1/beta. It is given as 8/7. Now these two values will be used for further calculation. From first alpha plus beta upon 2, we get alpha plus beta is equals to 16/5. From the first equation, alpha plus beta is 16/5. From the second equation, we get 1/alpha plus 1/beta. That true is transpose will be 16/7. Now we have obtained these two equations again from the first two equations. From this equation, we obtain alpha plus beta 16/5. And from this equation, we obtain 1/alpha plus 1/beta is 16/7. Now concentrate on these two equations. The second equation is cross product of these two. Beta plus alpha upon alpha beta, I can write directly as alpha plus beta upon alpha beta is 16/7. What is alpha plus beta? 16/5. Substitute here. Substituting the value of alpha plus beta, or we can write alpha plus beta is equals to alpha beta into 16/7. And now substitute the value of alpha plus beta as a 16/5. 16/5 will be alpha beta into 16/7. 16 will be cancelled from both the sides. So alpha beta will be 7/5. 7 will be transposed. The value of alpha beta will be 7/5. The value of alpha beta will be 7/5. Let us check. नहीं, ये में तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -16 वो जो वैल्यू दे रहा है ये वो नहीं आता ना, ये में भी हो सकता है फिर. सो अल्फा यस -16 चाहिए, बहुत सही है समीन ईश्वर. ओके, सो ये 7/5 होगा अल्फा बीटा का वैल्यू. तो क्वाड्रेटिक यस बी. सो अल्फा बीटा हमारे पास है 7/5 और अल्फा प्लस बीटा है 16/5. our quadratic equation is x square minus alpha plus beta x मतलब 16/5x plus alpha beta मतलब 7/5. 5 is multiplied throughout. 5x square minus 16x plus 7 0. Our answer is B. B. Yes. Okay. Yes, B is answer. You are right. Our answer is B. The answer was B. B was our answer. B was our answer. Yes, you are right. Now we can solve so many questions by using the quadratic equation and their
some properties of the roots. I have a question in my mind. If the roots are real, then what we get? We get b square minus 4ac 0. So one question is there. Real and equal. If x square minus 15x minus m into 2x minus 8 equals to 0. X square minus 15 minus m into, if you have this quadratic equation, x square minus m into 2x minus 8 bracket complete is 0. Then for what value of m? Roots are equal real roots. For what's value of m? The roots are real and equal. We have this question in our mind. X square minus 15 minus m into 2x minus 8 0. For what value of x? m. इसके कौन से वैल्यू के लिए? ये वैल्यू कौन सी चाहिए अननोन की, कि जिसके लिए रूट्स रियल एंड इक्वल हो गए. x square minus 15 minus m into 2x minus m. We write the equation in another form. X square minus m is multiplied by 2 mx multiply minus minus plus 8m and a minus 15 equals to 0. तो हमारे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2b एंड c की वैल्यू 8m minus 15. ये b की वैल्यू है, ये स्मॉल c की वैल्यू है और a की वैल्यू. रूट्स आर इक्वल का कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac 0. b स्क्वायर माइनस 4ac 0 मतलब रूट्स आर इक्वल. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है मतलब व्हाट? -2m का स्क्वायर माइनस b मतलब -2m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ c? 2m minus 15 इक्वल्स टू 0. अब ये जो वैल्यू है -2m ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू 2m minus 15 इक्वल्स टू 0. इससे हमें m की वैल्यू मिलेगी. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m? ये 0 होगा, सो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज योर. अगेन यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4m square minus 8m plus 60 equals to 0. फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. फिर से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है. For what value of m? The roots are real and equal. उसके लिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो b का वैल्यू है -2m, c का वैल्यू 8m minus 15 और a का वैल्यू 1 है. तो हमने इधर लिखा है -2m स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2m minus 15 0. तो ये जो क्वाड्रेटिक आपको नया मिल रहा है उसके जो m के वैल्यू है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ योर आंसर. ट्राई टू सॉल्व और चैट में मुझे आंसर भेजिए. 5 3m और कुछ है. 5 3s are 15, m की वैल्यू 5. चलो वेरीफाई करेंगे 3 या 5. 5 3 5 minus 3 5 3 से रिलेटेड आंसर जरूर है. See here. We have the equation x square minus 15 into minus 15 minus m into, this is our equation 2x minus 80. Repetition. This equation has real roots. So for what value of m? It has a real root. For what value of m? It has real root. X square minus बराबर है -15 minus 2mx plus 8m equals to 0. Only one value नहीं, दो value है. So we obtain m square x square minus 2mx plus 8m minus 15. ये हमारा quadratic equation है.
सो इसके रूट्स इक्वल है, इसके रूट्स इक्वल है m के कौन सा वैल्यू के लिए? वो 5 माइनस 5 2 नहीं होगा, 5 3 माइनस 5 3 5 माइनस 3 ऐसे कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। तो सीधा सीधा है, ए का वैल्यू 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, बी का वैल्यू -2pm, कोएफिशिएंट ऑफ x square minus 15 minus m into 2m 2x minus 8 equals to 0. Yes, it has equal roots. Then what are the values of m? M are what? Okay, Aditya. So b square minus 4ac 0 होता है, रूट्स इक्वल होते हैं। तो इक्वल रूट्स मतलब b स्क्वायर मतलब व्हाट? -2m, -2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर, 4 into what is value of a? 1. 4 into 1 is 4. What is value of c? 8m minus 15, directly written. So we obtain another quadratic equation. 4 8s are 4 into 8m minus 15. या हम 4 से डिवाइड करेंगे, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 0 माइनस साइन, तो प्रोडक्ट चाहिए 15, एडिशन चाहिए -8, -5 -3, 5 and 3 are answers. Five and 3. Yes, 5 and 3 are your answers. Plus 5 and plus 3. Not necessary to, है ना? 5 plus 3 8 होता है, -5 -3 आता है जब निगेटिव फैक्टर आते हैं, तो मतलब आंसर पॉजिटिव आता है। मिडल टर्म जब निगेटिव है, लास्ट टर्म पॉजिटिव, तो आंसर निगेटिव नहीं आता, आंसर पॉजिटिव आता है। याद रखो, इसमें भी कुछ ट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट, ये हायर अलजेब्रा की एक बुक है बहुत पुरानी, उसमें से क्वेश्चन लिया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m? 5r3, यस, 5r3 m के वैल्यूज है, और वो हमको m के वैल्यूज फाइंड करने थे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m? द इक्वेशन फॉर व्हाट m? द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस bx, इक्वेशन अलग है, एक सॉल्यूशन के लिए, इसमें कोई नंबर की वैल्यू नहीं आएगी, ये आ भी सकती है, इज इक्वल्स टू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। हाउ रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड में रूट्स इक्वल है, जैसे +5 -5 उनको कहते हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल, +5 +5 इनको कहते हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल, -5 -5 उनको कहते हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, साइन उनका अपोजिट है। तो ये जो इक्वेशन है उसके दोनों रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब अगर एक रूट 5 होगा तो दूसरा रूट भी 5 होगा, बट अपोजिट इन साइन की वजह से दूसरा रूट -5 होगा, मतलब ये दोनों रूट एक दूसरे के निगेटिव्स होंगे। These two roots will be the negative of each other. For what value of m? These two roots are the negative of each other. m के कौन से वैल्यू के लिए ये दोनों रूट्स एक दूसरे के निगेटिव्स है? For what value of m? These are the negatives of each other. ऐसा हमारा क्वेश्चन है। For what value of m? These are the negative of each other. अगर दोनों रूट्स एक दूसरे के निगेटिव है, मतलब उनका सम कितना आता है? 0, और उससे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। See here, for what value of m? The roots are opposite in magnitude, opposite in sign, but equal in magnitude.
What is your quadratic equation? This is your quadratic equation. So this is our quadratic equation. ऐसे m के कौन से वैल्यू के लिए इसके रूट्स एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा. अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑप्शन उसमें पुट करके इक्वेशन बना सकते हो और उसके रूट्स फाइंड कर सकते हो. बट हमें विदाउट ऑप्शन उसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सम ऑफ रूट 0 होता है, तो सम ऑफ रूट्स में उसको लेके जाएंगे. तो कैसे लेके जाना है सम ऑफ रूट्स में? तो इक्वेशन फिर से हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. 5 3 5 3 तो बहुत, अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इंटू इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू एक्स माइनस सी. अब ये टर्म इधर आएगी, देखो एक्स स्क्वायर को अकेले को ऐसे रखा है, m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 एक्स माइनस सी ट्रांसपोज हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स एम माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा ए को, तो a इंटू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 एक्स माइनस सी इंटू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1. ओके, अब ये टर्म इधर आएगी, ये आंसर ए बी में होगा, ए बी में m का आंसर इन टर्म्स ऑफ ए बी. ये टर्म इधर आएगी, देख लो फिर से. लेट मी एडजस्ट इट. ये इधर आने के बाद x के कोएफिशिएंट देखो, a इंटू एम माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस बी एक्स. याद रखो जब दो रूट्स 5 एंड माइनस 5 है समझो, तो उनका सम क्या आता है 5 प्लस माइनस 5 0. मतलब हमारे इस केस में हमें क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए 0, बिकॉज दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर. तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कब नेगेटिव आता है, जब कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उनका वैल्यू 0 आता है. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x जब 0 आता है, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ x 0 आता है, मिडल टर्म जब 0 होती है तो रूट्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं. मिडल टर्म 0 होने के लिए ये जो कोएफिशिएंट्स है, ये दोनों कोएफिशिएंट्स x के कोएफिशिएंट, ये वैल्यू 0 आनी चाहिए. तो x का कोएफिशिएंट एक्चुअल में क्या आएगा, व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x. हम उसको थोड़ा सिंपलीफाई करें. प्रॉब्लम को कभी भी कंप्लीट सोचना चाहिए, थिंक ओवर द प्रॉब्लम कंप्लीटली, देन गो फॉरवर्ड यूर सॉल्यूशन. डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है. तो ये इक्वेशन में हम फिर से देखेंगे, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स एक्स माइनस सी, हिंट मैंने आपको दिया है m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, आपको उसको लेके जाना है. सो हमने इसको अगर सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स विल बी m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू एक्स माइनस सी. देखो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गए. सो ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई करके m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू ए एक्स माइनस सी इंटू एम माइनस 1. हमको ये कांस्टेंट नंबर से कोई रिलेशन नहीं, हमें सिर्फ मिडल टर्म 0 आनी चाहिए. एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स इंटू एम माइनस 1 अपॉन एम प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस सी इंटू एम माइनस 1. इसको कोई मतलब नहीं, इसके ऊपर मत ध्यान दीजिए, कांस्टेंट टर्म. अब ये टर्म कब 0 आती है, ये टर्म कब 0 आती है, एक्स कॉमन लीजिए, जब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस साइन बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये जो दोनों टर्म है एक दूसरे के नेगेटिव होगी तो ये टर्म 0 आएगी, क्योंकि दोनों में एक्स है. सीयर डायरेक्ट minus b and minus a into m minus 1 upon m plus 1 both are negative of each other, then this value becomes coefficient of x 0. x को कॉमन लीजिए इसमें, अगर हमने x को यहाँ से कॉमन लिया, x को यहाँ से कॉमन लिया, तो ये दोनों टर्म से माइनस साइन कॉमन लिया, ये हो जाएगा x और ये प्लस, ये टर्म ऐसी बन जाएगी. ये राइट साइड की टर्म हम नहीं लिखेंगे, राइट साइड के टर्म को कोई इंपॉर्टेंस नहीं.
तो ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। ये वैल्यू जब 0 होगी तो कौन से वैल्यू के लिए वो वैल्यू 0 होगी m के, वही हमारा आंसर है। सो वी ऑब्टेन दैट व्हाट b plus a into m minus 1 upon m plus 1 0। तो ये इससे हमें m की वैल्यू मिलेगी b plus a into m minus 1। सो माइनस b अपॉन a इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a इक्वल्स टू m minus 1 अपॉन m plus 1। सपोज b को सामने लिया, a को डिवाइड किया, तो हमें अभी m की वैल्यू फाइंड करनी है m minus 1 अपॉन m plus 1 से। किसी भी तरह से आप इसको फाइंड करो, एनी वे यू कैन यूज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। वही m आपका आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ b एंड a। दिस इज आवर क्वेश्चन। आगे का काम आपके लिए। अगर आप करना चाहते हो तो देखो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। इफ यू हैव टू फाइंड m माइनस 1 m प्लस 1, कंपोनेंट डिविडेंड ऐड करो। हाँ यस यस, कोई बात नहीं, ये इतना ही प्रॉब्लम लेना है हमें। नेगेटिव रूट्स माइनस बी प्लस ए अपॉन माइनस बी माइनस ए कंपोनेंट m माइनस 1 प्लस m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 माइनस m माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, 2m अपॉन इधर m कैंसिल हो गए, 2m अपॉन माइनस 2, और इधर वैल्यू आता है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और ये माइनस 2 कैंसिल हो गए, और a माइनस बी को ये माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आपका फाइनल आंसर होगा। ये माइनस 2 जो है देख लो, कैलकुलेशन देखो, कंपोनेंट डिविड कभी भी फास्ट करना है तो। ठीक है, आपको आंसर मिला है। ये माइनस इधर आएगा तो माइनस ऑफ a माइनस बी अपॉन माइनस b minus a will be value of m. So a minus b upon a plus b will be the value of a. Value of a will be a minus b upon a plus b. Value of m will be a minus b upon m plus. Try to solve it. एक क्वेश्चन देते जाते जाते। If alpha beta are roots ax square plus bx plus c equals to 0, अल्फा बीटा अगर रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? एक। दूसरी वैल्यू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तीन। स्क्रीनशॉट लो, आज ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, बहुत दिक्कतें आई है रिकॉर्डिंग में। अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, और चार अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। चलो ये हुआ तो मिल जाएगा आपको। इन टर्म्स ऑफ ए बी उसके आंसर लिखने इन टर्म्स ऑफ ए बी। आज हम इधर ही रुकते हैं, धन्यवाद। किसी को कोई डाउट एक आधे मिनट में? आज बहुत डिस्टरबेंस आया। किसी को कोई डाउट? डाउट होगा का सर? रेखा देखो, नो, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, चलते रहता है। तो शुरुआत में दिक्कतें आई है, वो स्क्रीन एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम आया, वो दिखता नहीं था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। इसमें देखो अब अल्फा प्लस बीटा, अभी कुछ और एक दिन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग प्रॉब्लम के साथ, और एक दिन होगा। ओके ओके ओके, और एक दिन और कुछ प्रॉब्लेम्स लेंगे। ओके ओके, बी स्क्वेअर मायनस 4ac घेतलं ना आपण, खूप प्रॉब्लेम्स आहेत आपल्याकडे। स्टॅटिस्टिक्स, बरं बरं,
Okay. Sir, hello. थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे. गुड बाय. ओके, हैव अ नाइस डे. सेम टू यू. बाय. अगर कुछ सुझाव होगे तो कल बताइए. कुछ एक आधा चैप्टर भी शुरू करेंगे. सेकंड सेक्शन में शुरू करेंगे, पहले सेक्शन में. थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे. धन्यवाद. Try to join at 3:30. There will be the GATE lecture. Try to join at 3:30. There will be the GATE lecture.